CAPFAC 2023 as promised, mission 250 plus. I'm presenting here day one. And if you are completing, those who are completing the complete series, means 1500 questions I have said. So all 1500 obviously in paid program it will be, but obviously on every year I am providing some of the questions in open platform. So obviously I will provide here also. So, for example, on an average, for example, daily 25 questions on open, and some second paper, two topics also. But majority, all the questions, 1500, what I said, paid courses, they will get in PDF also, and they will get the recording of these questions all. But some of the questions on daily basis, you will get in open here. So today, for example, actually it was yesterday itself, it should have been started, but due to some other engagement, I was not able to do. But once started, it will be daily. So on open platform, at least 25 questions I will provide you daily, and rest questions will be for public. Sorry, for private, means those who are subscriber, paid subscriber. I written here ki increase at least 30 plus marks, whatever you deserve, but I have used star. Reason is that some student will say, for example, those who are at this time itself able to score 270, 260 plus in written, then I cannot promise them ki I will be helpful to increase 30 plus, because a certain level ke baad, after a certain level, it is very difficult to increase even single marks. But those, for example, if you are in the league, you are getting 120, 130, 140 in paper one, or 80, 85, or 70, 75 in paper two, then definitely for you people, obviously, you can increase at least 30 plus marks, minimum 30 plus marks, if you are following holistically. So what all about paid and all things, I already discussed in that video. I'm not going to explain that. You should go through. Yes, link of that video I will share here. So you should watch that. If you are interested, you can join. I'm not going to discuss that. Here, let us take a realistic plan. Paper one, your target should be 150 plus, and paper two, your target should be 100 plus. See, I always say, it depends on level of question. If UPSC said question in such a way that even 100 marks getting difficult, then I cannot say no. I am saying in generalization, if the nature of question paper is like previous year paper, so you should target about 150 plus, paper 2 100 plus. Okay, that's so. Without further delay, I should start the question. These questions are in such a way that if you are doing all the questions, all 1500 questions in paper one, obviously today I'm not going to provide paper two content, but tomorrow, from tomorrow, paper two also, you will get some of the topics, some of the topic in open and some of the topic in private. Okay. So these questions, if you are doing properly, then definitely it will combine. For example, paper one, paper two, it will help you at least getting 30 plus more marks, and that will be the game changer. So first question, under environmental impact assessment notification 2006, projects for projects for R divided into category. Okay, so you can remove this. The projects are divided into category A and B. Category B is further divided into B1 and B2. Consider the following statements in this regard. So it is said कि जो पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना जो है 2006 है, उसके तहत परियोजना जो भी है वो श्रेणी ए और श्रेणी बी में, जो किसी भी प्रोजेक्ट को आप स्टार्ट करते हो तो उसके इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी होते हैं, तो उसको जो डिवाइड किया गया है ए और बी में, बी को जो है अगेन आपको डिवाइड किया गया B1 एंड B2। इस संबंध में आपको निम्नलिखित कथन पे विचार करना। कैटेगरी ए रिक्वायर्स अप्रूवल फ्रॉम यूनियन एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट, फर्स्ट चॉइस इज देयर। सेकंड चॉइस, कैटेगरी B2 इज exempted। ओके, सो फर्स्ट इज की कैटेगरी ए रिक्वायर्स अप्रूवल फ्रॉम यूनियन एज वेल एज स्टेट। नो, actually category A requires only from union government. So for purpose of projects is divided here.
So project A requires approval from union government itself, so it is not from state government. Okay, so first statement is incorrect. So first statement is incorrect, then it will not be there, it will not be sorry, yes, first is incorrect, then it will not be there. Now our possibility is either B or D. Next, B2 is exempted. Yes, B1 requires a state approval. Okay, a state government approval. Okay, so B1 requires approval from a state government and B2 is exempted. So B2 is exempted, then second B is correct. So answer is B. Okay, so श्रेणी B को इससे छूट दी गई है कि आपको सरकार से आवश्यकता नहीं है, किसी से, ना सेंटर से और ना स्टेट से, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। जो राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के संबंध में निम्नलिखित कथन पे विचार करना है। इट इज स्टेब्लिश्ड अंडर बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002। क्या यह बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 के अंतर्गत किया गया है? नहीं, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। ये आपका जो है 1972 का जो है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है, प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत किया गया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका ये गलत हो गया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, तो ये एटलीस्ट आपका एक हट गया। मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ MOEFCC यानी कि मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। नहीं, ये जो आपके ये भी आपका गलत है, क्योंकि इसके कौन है? PM है। प्राइम मिनिस्टर जो है नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड के जो चेयरमैन है, चेयरपर्सन है, वो कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। तो प्राइम मिनिस्टर इज एक्स ऑफिशियो, तो ये भी हमारा गलत हो गया। इसका मतलब है कि ये भी हमारा हट गया। तो ओनली 2 पेयर्स आर ट्रू, ये भी नहीं है। नेक्स्ट, अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचा। द बोर्ड हैज बाइंडिंग जुरिस्डिक्शन इन कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ। देखो, जनरली जो है बाइंडिंग हर जगह नहीं होता, तो ये एडवाइजरी है, तो ये भी गलत हो गया, तो ये भी हट गया। तो नन इज ट्रू। कुछ क्वेश्चंस आपको थोड़े टफ दिए गए हैं, कुछ क्वेश्चंस आपको इजी दिए गए हैं। आपको टेंशन ज्यादा नहीं लेना है कि ऐसा नहीं है कि पहले 2 क्वेश्चन देख रहे हैं हम धाराशायी हो जा रहे हैं, और ये नहीं, हर टाइप के हमने क्वेश्चंस को रखने का कोशिश किया है, लेकिन जिससे अधिक से अधिक आपको इंफॉर्मेशन मिल सके। क्वेश्चन नंबर 3, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज ग्रेटर इन पैसिफिक ओशियन देन दैट इन अटलांटिक ओशियन। ये देखो, ये गलत है, क्योंकि जितना बड़ा, ज्यादा बड़ा समुद्र है, वहां आपका जो है एनुअल रेंज कम होगा। लैंड पे एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर ज्यादा होता है। करा अटलांटिक महासागर की तुलना में प्रशांत महासागर में तापमान का वार्षिक परिसर अधिक होता नहीं है। इनफैक्ट जो अटलांटिक में आपका जो है लार्जर ओशन यदि है, तो बड़ा आपका जो बिगर द साइज ऑफ ओशन लेसर द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया, तो 2 ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज ग्रेटर इन द नदर्न हेमिस्फेयर देन दैट ऑफ सदर्न हेमिस्फेयर। यस, ये सही है, क्योंकि नदर्न हेमिस्फेयर में लैंड ज्यादा है, तो वहां ज्यादा एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर रहेगा। सदर्न हेमिस्फेयर में लैंड कम है, सी वाटर ज्यादा है, तो इसका मतलब 2 ओनली होगा। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, ये जो कुछ ट्राइब्स दिए हुए हैं, बोडो ट्राइब्स, मिशिंग ट्राइब्स, राधा ट्राइब्स, गारो ट्राइब्स, दिमाशा ट्राइब्स। अब इसमें से आपको ये है कि कौन से आसाम से बिलोंग करते हैं। देखो, प्रॉब्लम कभी कभी क्या होता है ना, कि हम गारो, खासी, जैंतिया ये जानते हैं कि मेघालय में है, तो कभी कभी क्या होता है ना कि हम देखें और डायरेक्ट इसको मार दिए, तो अब मान के चलो लगेगा कि हम 4 को हटा दें, तो जब 4 को हटाओगे तो उस अनुसार ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, ये भी, तब तो लगेगा कि हमारा 1 2 3 है। लेकिन जो गारो हैं वो मेनली आपके मेघालय में पाए जाते हैं, लेकिन एडज्वाइनिंग स्टेट्स यानी कि आसाम में जो भी पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं। इसका मतलब है कि ये एक्चुअल जो आपने थॉट लिया था वो गलत है। तो बोडो आप जान रहे हो, बोडो है तो 1 तो सब में है, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। मिशिंग, तो मिशिंग भी आपका पाया जाता है। राधा, गारो, दिमाशा, ये सारे के सारे जो हैं ये पाए जाते हैं। तो आपका ऑल 1 2 3 4 5 हो जाएगा। तो इसमें आपको थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है कि रिसेंटली इंडियन आर्मी डिसाइडेड टू ब्रिंग चेंजेस इन द यूनिफॉर्म
जो इंडियन आर्मी है, इंडियन आर्मी के जो रैंक होते हैं, ऑफिसर रैंक सपोज लेफ्टिनेंट से स्टार्ट होते हैं। आप एज असिस्टेंट कमांडेंट जब बनते हो तो असिस्टेंट कमांडेंट के इक्विवेलेंट वहां जो कैप्टन होते हैं। तो जो यूनिफॉर्म फोर्सेस चेंज करने का फैसला लिया गया है, इसमें के संबंध में आपको विचार करना है। ऑफिसर्स ऑफ द रैंक ऑफ कर्नल, रैंक ऑफ कर्नल एंड अबव विल नाउ हैव कॉमन यूनिफॉर्म। तो जो कर्नल और उससे ऊपर के रैंक के हैं उनके यूनिफॉर्म सेम होंगे नहीं, ब्रिगेडियर और उससे ऊपर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया। तो ब्रिगेडियर और उसके ऊपर के लेवल के जो ऑफिसर्स होंगे वो उनके जो होंगे ड्रेस समान होंगे। तो पहला आपका गलत हो गया। वन ऑफ द रीजंस फॉर सच ए मूव इज टू अवॉइड रेजिमेंटल पैरोकियलिज्म इन द हायर रैंक। यस, ये सही है। तो ओनली टू इज करेक्ट। अब ये क्या होता है ना कि जैसे आप बॉर्डर मूवी देखना, तो जो ये आपके सनी देओल होते हैं वो ऑब्वियसली है मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी का रोल करते हैं। और जो जैकी श्रॉफ होते हैं वो आपके एयरफोर्स। तो बोलते हैं एयरफोर्स इज द बेस्ट, ये बोलते हैं नहीं आर्मी इज द बेस्ट। दोनों फाइट एक तरह से करते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्या रिजल्ट निकलता है, दोनों अच्छे हैं। तो कुछ जैसे होता है ना कि मैं जाट रेजिमेंट का हूं, मैं गोरखा रेजिमेंट का हूं। तो ये जो रेजिमेंटल पैरोकेलिज्म है वो उसको हटाने के लिए कि सबका ड्रेस एक ही है तो कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट होगा। तो ये एक वन ऑफ द रीजंस माना गया है। तो इसका जो है ये आपका ये सही जो है वो ओनली टू होगा। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है इनॉग्रल आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज AIME 23 वाज हेल्ड इन विच कंट्रीज नेवल बेस। तो ये जो कंट्रीज हैं, तो इन कंट्रीज में से कहीं आपका इसमें से हुआ है। तो देखो इनॉग्रल ये कह रहा, इनॉग्रल का मतलब ये प्रथम है, ये फर्स्ट है आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। आसियान इंडिया का मतलब क्या है कि ये आसियान के कंट्री जो हैं ये सारे जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और आसियान कंट्री के बाद जो है वो इसके बाद अदर जो कंट्री हैं वो उसमें से कौन से हैं। तो मतलब ये आसियान कंट्री में से कहाँ इसका ये हो रहा है। तो पहला है इंडोनेशिया है, सिंगापुर है, मलेशिया है और फिलीपींस है। तो इसमें से इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया और फिलीपींस, तो इसमें से मलेशिया होगा। तो इसमें कह रहा है कि इनॉग्रल आसियान इंडिया मैरीटाइम हेड एट चांगी नेवल बेस ऑफ सिंगापुर, सॉरी ये इन ये ठीक है। एक सेकेंड एक सेकेंड, इसमें ये एक आप देख लेना शायद ये एक जो है ये सिंगापुर में है। सॉरी सॉरी, ये मलेशिया नहीं, ये आपका जो है सिंगापुर में है। ये आपका सिंगापुर में ये किया जा रहा है। तो सिंगापुर का जो चांगी एयरबेस है ये वहां पे आपका किया जा रहा है। ठीक है। तो इसका आंसर जो है आप ये बी कर लो। तो इसमें से ये आसियान में आप जान रहे हो कि 10 मेंबर्स हैं, तो आपको जानना चाहिए। समटाइम ये दे दिया जाता है कि आसियान के कौन कौन से ये सदस्य हैं, तो उसमें से भी आपको ये जानना चाहिए। तो इसका जो ये हो जाएगा आपका आंसर बी हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट है युकाटन पेनिनसुला इज लोकेटेड इन बीच कंट्री। युकाटन पेनिनसुला इज लोकेटेड इन बीच कंट्री। तो युकाटन पेनिनसुला कहाँ आपका है, तो ये आपका मेक्सिको में है। युकाटन पेनिनसुला मेक्सिको में। और ये टूरिज्म के लिए आपका जो है ये काफी फेमस है। तो ये आपका जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ब्लू होल। ब्लू होल के संबंध में ये आपको कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर ये विचार करना है। तो कह रहा है इट इज ए लार्ज मेराइन केव और सिंक होल। तो ये आपका जो है लार्ज मेराइन केव या बड़ी समुद्री गुफा या सिंक होल है। तो कुछ कुछ जो समुद्र क्षेत्र में भी आप देखोगे कि गुफा टाइप का ये बन जाता है, क्योंकि ये क्या होता है इरोजन से होता है। जनरली कास्ट टोपोग्राफ लाइक थिंग्स के कारण होता है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट ये सही है। सेकेंड, डीप ब्लू कलर इज कॉज्ड बाय बे द लाइट इज एब्जॉर्ब्ड एज इट ट्रेवल्स थ्रू द वाटर। ठीक है। तो डीप ब्लू कलर है वो किसके कारण होता है, बाय वे ऑफ लाइट इज एब्जॉर्ब्ड एज इट ट्रेवल्स थ्रू द वाटर। यस, ये भी सही है। देखो ये क्या है, ब्लू होल है। तो ब्लू क्या है, गहरा नीला रंग पानी के माध्यम से चलते समय प्रकाश के अवशोषित होने के तरीके के कारण होता है। तो यस ये सही है। वर्ल्ड्स डीपेस्ट ब्लू होल इज लोकेटेड इन अटलांटिक ओशन। नहीं, ये आपका अटलांटिक ओशन में नहीं है। ये आपका कहाँ है, साउथ चाइना सी में है। साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी में ए। तो ये इसका करेक्ट आंसर जो है ये ए हो जाएगा। ओके।
तो इसमें से आप ये ए लगाओ। नेक्स्ट आपका है वेयर इज देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो ओडिशा में है। तो ये ओडिशा में आपका देखोगे जो आपका हीराकुद डैम जो है, हीराकुद डैम के ये पास लोकेटेड है। कह रहा है कि नेचुरल बिटवीन द हीराकुद डैम एंड रिजर्वायर मेक्स अ पिक्चर्स्क्यू setting. The sanctuary finds a special mention because of noted freedom fighter वीर सुरेंद्र साई। तो वीर सुरेंद्र साई जो हैं ये उनके जो कह रहा कि ये जो आपके फ्रीडम फाइटर जो सुरेंद्र साई हैं, तो ये इस एरिया में आप यहाँ इन्होंने इस एरिया में अपना बेस बनाया था ये सेंचुरी में। तो इस बार वजह से जो है वो फेमस, ये चर्चा में न्यूज में अभी हाल के डेट में है। तो जैसे किसी भी पर्सन का जब कोई सेलिब्रेट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट, तो वो चीज न्यूज में रहता है। तो इसका डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रिवर कोलक फ्लोइंग थ्रू इंडिया। ओके, सो ये जो रिवर कोलक के बारे में आपको ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है। तो कह रहा है कि फर्स्ट, इट इज एन ईस्ट फ्लोइंग रिवर। तो ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है? नो, ये आपका वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। इट ओरिजिनेट्स एट बलसाड इन गुजरात। तो ये गुजरात में के बलसाड से ओरिजिनेट होता है। तो यस, ये भी सही है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट सही है। तो इसका बी आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ब्लू बगिंग। तो ब्लू बगिंग के संबंध में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर आपको ये विचार करना है। तो ब्लू बगिंग जो है ये एक तरह से ब्लू बगिंग हैकिंग टेक्निक है। तो इसमें से जो फर्स्ट स्टेटमेंट का रहा, इट इज अ हैकिंग टेक्निक दैट अलाउज इंडिविजुअल टू हैक अ डिवाइस दैट हैज ओपन वाईफाई एक्सेस। अभी पूरा पहले फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट के देखो तो शायद ये ज्यादा क्लियर होगा। दिस हाईजैकिंग अटैक इज ऑफन लिमिटेड टू 10 मीटर्स। ये 10 मीटर्स के रेंज में ही होता है। तो देखो, जो ये कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें फॉल्स है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो सेकेंड स्टेटमेंट ये सही है। तो सेकेंड स्टेटमेंट सही है तो सेकेंड तो फॉल्स नहीं होगा। अब ये कह रहा बोथ द स्टेटमेंट आर फॉल्स, तो ये भी नहीं होगा। बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, हम ये इसके संबंध में नहीं कर सकते हैं। तो या तो ए होगा या ए होगा, ए या डी। तो कह रहा है कि इट इज हैकिंग टेक्निक दैट अलाउज इंडिविजुअल टू हैक अ डिवाइस दैट हैज ओपन वाईफाई एक्सेस। ये जनरली ब्लूटूथ से ये होता है। ठीक है, ब्लूटूथ से, तो वाईफाई से ये नहीं। तो फर्स्ट आपका गलत है। तो ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वासीजेनिथ सैटेलाइट सिस्टम इज ऑफ विच कंट्री। क्वासीजेनिथ सैटेलाइट सिस्टम है वो किस देश का है? तो ये जापान का है। ये जापान का एक तरह से देखो, जो सपोज करो जापान और यूएसए, यूएसए जापान में रिलेशन है। तो जो जापान के पास आपका जीपीएस सिस्टम है, तो उस जीपीएस सिस्टम को यूज करके और उसमें से कुछ वैल्यू एडिशन करके जो स्पेसिफिक कुछ कुछ एरिया में उसको हम बेटर तरीके से जो है इंफॉर्मेशन प्राप्त उस एरिया के कर सकते हैं। तो इसका सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है बोटुलिनम। तो बोटुलिनम जो है इसमें से इज एन एग्जांपल। तो बोटुलिनम आर्टिफिशियल स्वीटनर है? नहीं है। न्यूरोटॉक्सिन्स है। न्यूरोटॉक्सिन्स का मतलब क्या होता है कि जो टॉक्सिन, टॉक्सिन का मतलब क्या है कि जो नर्वस सिस्टम या जो न्यूरॉन्स जो हैं उनको प्रभावित करता है। टॉक्सिन का मतलब क्या है? एक तरह से वो आपका पॉइजनस। तो ये आपका पॉइजनस चीजें हैं। तो ये आपका जो है हार्मफुल ये के लिए होता है। तो इसका बी है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्रा। ओके, सो इसमें से ब्रह्मपुत्रा रिवर के ट्रिब्यूटरी कौन है? तो फर्स्ट कामेंग, नेक्स्ट कोपोली, शिवनाथ और धनसिरी। तो ये शिवनाथ जो है वो महानदी का है। ये महानदी का है। तो जिसमें जिसमें 3 है तो उसको हटा दो। तो पहले बस एक ही में 3 है। तो धनसिरी भी है। तो 1 2 4, 1 2 4 किसमें है? तो डी में है। तो ये आपका हो जाएगा डी आंसर। नेक्स्ट है मैगिनोट लाइन। मैगिनोट लाइन जो है एग्जिस्ट बिटवीन विच पेयर ऑफ कंट्री। तो मैगिनोट लाइन जो है वो आपका जब ये वॉर के टाइम में एक तरह से डिफेंसेस बिल्ट बाय इन 1930s के ड्यूरेशन में जब जर्मनी एग्रेसिव हो रहा था, तो उस समय एक तरह से फेंसिंग वगैरह ये किया गया था। ऑब्वियसली उस समय क्या था, वॉर और ये सब के कारण जो है बॉर्डर चेंजेज वगैरह होते रहते थे। तो ये आपका 1930s में ये
आपका है, ठीक है। तो इसका जो आंसर आपका ये हो जाएगा, तो ये फ्रांस एंड जर्मनी, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, विच ऑफ दिस लाइज अबव द मेसोपॉज एंड इज ए रीजन ऑफ इन विच टेम्परेचर इंक्रीजेज विद हाइट। तो एक तो देखो कह रहा कि मेसोपॉज से ऊपर है, तो सबसे, अब देखो जो ट्रोपोस्फेयर है वो तो सबसे नीचे वाला है, तो इसमें टेम्परेचर ऊपर जाते हैं तो नीचे गिरता है, तो ये तो हमारा नहीं होगा। अब देखो एक्सोस्फेयर, तो एक्सोस्फेयर ये, और एक थर्मो स्ट्रेटोस्फेयर इसके जस्ट बाद है ट्रोपोस्फेयर के बाद, तो ये तो नहीं होगा। अब एक्सोस्फेयर ये आउटर मोस्ट होता है, तो मेसोपॉज के बाद है तो ये थर्मोस्फेयर होता है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज आर करेक्टली मैच्ड। त्रिपीटक सब्जेक्ट मैटर, सूत पीटक कन्वेंशनल टीचिंग, तो ये है परंपरागत शिक्षण, तो सही है। विनय पीटक डिसिप्लिनरी कोड, ठीक है, कि अनुशासन संहिता। और अभिधम्म पीटक ये मोरल साइकोलॉजी, या ये फिलोसफी कह सकते हो, मोरल फिलोसफी प्रॉपर कह सकते हो, लेकिन साइकोलॉजी भी कह सकते हो। तो ये आपका 1 2 3 जो है, ऑल ऑफ द एबोव आर करेक्टली ये मैच है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 18 जो है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा कि विच चोला किंग कैप्चर्ड मदुराई एंड टुक द टाइटल ऑफ मधुरांतक एंड मदुरई कोंडा। ओके, जैसे एक आपने जो देखा होगा गंगई कोंडा चोलापुरम जो है, तो ये, और इस ढंग से जो होता है कि तो आपने पराजित किया, तो ये कौन है, तो ये परांतक वन है। परांतक वन कौन थे, आदित्य वन के सन थे, यानी परांतक वन के फादर जो है आदित्य वन थे, तो ये चोल डायनेस्टी के थे। तो चोला, ये परांतक चोला वन, और ये तो चोल जो साम्राज्य है उसके ये फाउंडर थे, तो फाउंडर ये थे, इन्होंने ये नहीं किया। ओके, सो आदित्य वन के सन परांतक वन थे, तो परांतक वन ने ये किया था, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज ऑल्सो नोन एज द संत हेलेना एक्ट। संत हेलेना एक्ट किसको किसको एज ए संत हेलेना एक्ट के नाम से जाना जाता है, तो चार्टर एक्ट 1833। इसका कारण क्या है कि जो आपका कुछ जो चेंजेस हुए थे, तो ब्रिटिश जो एम्पायर था, तो ब्रिटिश एम्पायर जो बहुत बड़ा फैला हुआ था, वो कहते हैं ना कि ब्रिटिश एम्पायर में सनसेट नहीं होता था, तो कुछ एक एरिया जो थे, तो वो सेंट हेलेना से संबंधित, और जो रूल्स वगैरह चेंजेस किए जाते थे, कुछ चेंजेस वगैरह, तो इसमें से ये किया गया था, तो इसके कुछ जो कंपोनेंट्स थे वो उसको बाद में, शुरू में आपके डिफरेंट एक्ट्स के नाम से जाने जाते थे ये, लेकिन उसके बाद जो है इसको संत हेलेना एक्ट रिवाइज करके बाद में इसको कर दिया गया था, तो इसको डी इसका आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 में ये कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रॉलेट एक्ट एंड चूज करेक्ट स्टेटमेंट। रॉलेट एक्ट जो जिसके कारण बाद में फिर देखो कि जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, तो रॉलेट एक्ट वाज पास्ड इन 1919, ये सही है। इसी के बाद देखोगे जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ, तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, तो हमारा ये और ये हट गया। अब सेकेंड स्टेटमेंट, इट वाज एन एक्ट व्हिच गेव द ब्रिटिश गवर्नमेंट मैसिव पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटी, सही है। The act allowed that government to arrest anybody without a trial for 2 years. Yes, ये सही है। तो एक्ट ने क्या अलाउ किया कि गवर्नमेंट किसी को भी अरेस्ट कर सकता है विदाउट ट्रायल, मिनिमम 2 इयर्स, मैक्सिमम ज्यादा का भी कर सकता है। फॉर 2 इयर्स इन द सेंस की अप टू, मतलब 2 इयर्स तक तो ऐसे भी रख सकता है बिना मुकदमे तक, फिर उसके बाद है और भी एक्स्ट्रा रख सकता है। तो ये 1 2 3 ऑल करेक्ट है, तो इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन द इंडिविजुअल सत्याग्रह, जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है, उसमें विनोबा भावे वाज चूजन एज द फर्स्ट सत्याग्रही, हु वाज द सेकंड। तो सेकंड थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और थर्ड जो थे ब्रह्मदत्त थे, ब्रह्मदत्त, ब्रह्मदत्त थे। तो कभी कभी ये भी पूछा जाता है, तो इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, मद्रास महाजन सभा के संबंध में करेक्ट ऑप्शन स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स को चूज करना है, तो इट वाज स्टार्टेड इन द ईयर 1884, यस सही है। पी रंगैया नायडू वाज इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंट, ये भी सही है। और आनंद चारयूलू या चार्लू भी इनको कहते हैं, तो इधर चारयूलू और चार्लू इसके फर्स्ट सेक्रेटरी थे, इट्स फर्स्ट सेक्रेटरी, तो ये भी सही है। तो डी इसका हो जाएगा, ऑल 1 2 3 आर करेक्ट, तो इसका डी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वाज वेयर पास्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ वारेन हेस्टिंग्स। तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773,
एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अब इसमें से देखो, एक ये वाला जो एक्ट है, ये इसके कितना दिन बाद आया है, तो ये इस समय तो थे, तो ई अब नहीं होगा। अब आपके पास ऑप्शन एक तरह से ऑल फोर वाला तो आपका हट गया। अब आपके पास ये चीज ध्यान रखो कि यदि 1 और 3 होगा तो ये भी होना होगा, ये बात आप मानो। तो अब ये वाला भी विकल्प को आप हटा दो, मतलब ऑप्शन इस ढंग से आपका सेट किया गया। तो अब हमारे पास इधर वो 1 1 हो सकता है, वो 1 2 3 हो सकता है। तो यदि 3 होगा तो 2 भी होगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये आपका 1 2 एंड 3 हो जाएगा। तो ये 1 2 एंड 3 हो गया आंसर, सी आंसर हो गया। नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट करा क्वेश्चन नंबर 24। महाशिला कंटक एंड रथ मूसल इनोवेटिव मिलिट्री वेपन्स वेयर यूज्ड बाय विच ऑफ दिस किंग्स। तो जो रथ महाशिला कंटक है और रथ मूसल है, इनोवेटिव मिलिट्री वेपन्स वेयर यूज्ड बाय विच ऑफ दिस किंग्स, ठीक है। तो ये किन राजाओं के द्वारा ये किया गया, इन राजाओं में से किसके द्वारा किया गया यूज। तो ये थे अजातशत्रु। अजातशत्रु जो थे बिंबिसार के पुत्र थे, और इन्होंने क्या है कि जो अपने मामा जो प्रसेनजीत थे उन पर भी अटैक कर दिया, और जो आपके बज्जी लिच्छवी वहां से भी इनके फादर का मैट्रिमोनियल अलायंस था, यहाँ भी इन्होंने अटैक कर दिया। तो जो महाशिला कंटक का क्या था कि पत्थर फेंकने वाले, बड़े बड़े पत्थर मशीन से फेंके जाते थे। अब आज के जैसा सोफिस्टिकेटेड नहीं था, लेकिन वो उस ढंग का था। तो बड़े बड़े पत्थर, जैसे आपने जो बाहुबली मूवी में देखा होगा, तो उस ढंग से। और रथ मूसल का मतलब है कि एक बहुत भारी जो गदा रहता था, और उस गदा से एक तरह से मास मर्डर आप करते थे। तो ये इसका बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर आपके 25 में ये कह रहा है कि जो ये कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी। तो जो लैंड भूमि क्षरण तटस्थता के संबंध में निम्नलिखित कथन पे विचार करना है। तो ये कह रहा कि द कंसेप्ट वाज डेवलप्ड अंडर द कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये आपका जो कह रहा कि फर्स्ट में क्या है कि ये इसके तहत क्या किया गया था। तो ये है कि कंसेप्ट ऑफ लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी इमर्ज्ड फ्रॉम द यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि रियो+20। तो रियो वाला 1992 में हुआ, उसके +20, यानी कि रियो+20 यानी कि 2000 एंड ये 12। तो 2000 ये 12 में ये हुआ। तो जो यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो ये जो आपका कोलिशन ऑफ डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये नहीं है। तो फर्स्ट आपका गलत हो गया, तो 2 ऑप्शन आपका हट गया। नेक्स्ट है द बॉन्ड चैलेंज एम्स टू ब्रिंग 150 मिलियन हेक्टेयर्स डिग्रेडेड एंड डिफोरेस्टेड लैंड इनटू रिस्टोरेशन बाय 2020। तो ये सही है। एक्चुअली देखा जाए तो ये पुराना है, इसका भी फिलहाल अब ये 23 में हम चल रहे हैं, लेकिन इसने ये टारगेट रखा था। तो हमें कभी कभी हिस्टोरिकल चीजों को भी हमें देखना होता है। तो ये सेकेंड स्टेटमेंट सही है, तो एक्चुअली आंसर यही हो जाएगा। तो ये आपका सी हो गया। नेक्स्ट है द कंसेप्ट ऑफ एलडीएन इमर्ज इन रियो समिट। नो, तो ये आप जान रहे हो कि ये आपका 2012 में हुआ। तो इसका जो है स्टेटमेंट सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, रिसेंटली इंडिया डोनेटेड प्रोपेलर्स ऑफ द Antonov AN-32 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ऑफ टू विच कंट्री। एक्चुअली ये देखा जाए तो यूएसएसआर ओरिजिन का ये था, ठीक है। तो उसमें से जो प्रोपेलर्स इसके, यानी प्रोपेलर्स का मतलब क्या है कि आप ये उसमें से जो सैन्य उसको एक तरह से मशीन टाइप का ये कह सकते हो, तो वो किसको ये किया, तो इसमें मिलिट्री ट्रांसपोर्ट, तो ये श्रीलंका को किया। तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज ए स्टैंडर्ड क्राइटेरिया फॉर। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब है यदि बीओडी अधिक है, इसका मतलब है क्या कि जो वहां है पॉल्यूशन आपका अधिक है। जैसे ऑक्सीजन का डिमांड ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब क्या, पॉल्यूशन ज्यादा है, तभी तो ज्यादा डिमांड हो रहा है। तो ये आपका क्या है कि ये है मेजरिंग ऑक्सीजन लेवल इन द ब्लड। नो, ये आपका जो वाटर बॉडी वगैरह एक्वाटिक इकोसिस्टम में होता है। तो कंप्यूटिंग ऑक्सीजन लेवल इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम। नो, पॉल्यूशन ऐसे इन एक्वाटिक इकोसिस्टम, तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण का आकलन का असेसिंग ऑक्सीजन लेवल इन हाई एल्टीट्यूड रीजन्स। नो, तो इसका सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस आर लिस्टेड अंडर
स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, एल्ड्रीन, हेप्टाक्लोर, इंड्रीन और डीडीटी। ओके, सो ये चार के चारों जो हैं ये परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स में आते हैं, तो इसके आपको ये जानना चाहिए। नेक्स्ट आपका है विच स्टेट जनरेटेड लार्जेस्ट ई वेस्ट इन इंडिया इन द रिसेंट ईयर। ई वेस्ट जो है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट एक बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है, तो हाल के दिनों में जो अभी कपल ऑफ ईयर्स में तो सबसे ज्यादा जो है महाराष्ट्र ये इसको जनरेट कर रहा है, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका है हेडक्वार्टर्स ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग जोन्स ऑफ इंडियन रेलवे इज लोकेटेड एट द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। तो ये आपको सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा कि किसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तब आप बता पाओगे। तो ईस्टर्न का आपका कोलकाता है, नॉर्थ ईस्टर्न, तो नॉर्थ ईस्टर्न का आपका गोरखपुर है, ठीक है, गोरखपुर है। ईस्ट सेंट्रल का आपका कहाँ है, हाजीपुर है। और ईस्ट कोस्ट का आपका भुवनेश्वर है। तो अब देखो गोरखपुर आपका यूपी में है तो ये ईस्टर्न मोस्ट में नहीं होगा, हाजीपुर बिहार में है तो ये भी नहीं होगा। अब आपका ये में जानना था ईस्टर्न और ईस्ट कोस्ट, तो ईस्ट कोस्ट आपका भुवनेश्वर है और ईस्टर्न का कोलकाता है, तो ऑब्वियसली कोलकाता वाला ये आपका ईस्टर्न में होगा, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बीच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोशल इंसेक्ट। सोशल इंसेक्ट का मतलब है ना कि एक सामाजिक कीट, यानी कि ये झुंड में रहते हैं, ये ग्रुप में रहते हैं, ये समूह में रहते हैं, तो इसमें से कौन ऐसा नहीं है। तो टर्माइट, दीमक, दीमक देखोगे ग्रुप में दीमक चाटते हैं, तो ये तो है, तो ये नहीं आंसर होगा। एंड चींटी तो आप सब लोग देखे हुए हो, मधुमक्खी आप सब लोग देखे हुए हो, तो ये बटरफ्लाई है। बटरफ्लाई जनरली जनरली मैं बता रहा हूं कि वो नहीं पाए जाते हैं ग्रुप में, वो मेटिंग के लिए ही, बस रिप्रोडक्शन के लिए ही एक दूसरे के साथ में आते हैं, अदरवाइज देखोगे कि इंडिविजुअल अपना उड़ रहे हैं, ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है हाइड्रोफोबिया और फियर ऑफ वाटर में अफेक्ट ए पर्सन हैविंग। तो हाइड्रोफोबिया का मतलब क्या है कि पानी से डरता है, तो पानी से किस में डरता है आदमी। डिप्थेरिया में पानी से आप नहीं डरते हो, निमोनिया में पानी से नहीं डरते हो, टेटनस में, ये रेबीज जिनको कुत्ते काट लेते हैं या उस टाइप के मंकी या और जो कैनाइन एनिमल्स वगैरह हैं, तो रेबीज हो जाता है जनरली डॉग टाइप के एनिमल का से। तो अभी काफी चर्चा में है डॉग बाइट, जो अस्टेरी डॉग मेनेस, तो इसमें से आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट, विच सिटी सेलिब्रेट्स क्रिसमस डे ड्यूरिंग समर। तो क्रिसमस डे जो है समर में कौन ये करता है, तो आपको ये जानना पड़ेगा कि क्रिसमस कब होता है। दिसंबर में होता है, 25 दिसंबर के करीब, 25 दिसंबर को एक जैसे सपोज पूरे वीक मनाते हैं। तो अब देखो मुंबई आपका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ठंडे के समय में माना जाता है। मॉन्ट्रियल कनाडा में है तो ये नहीं होगा। मैड्रिड स्पेन में है, ये नहीं होगा। ये जो आपका मोंटेवीडियो जो है, तो मोंटेवीडियो जो क्या है, ये आपका उरुग्वे में है, तो ये आपको जानना जरूरी था। उरुग्वे कहाँ है, तो ये साउथ अमेरिका में है, तो इसका मतलब यहाँ आपका सेलिब्रेट किया जाएगा, तो ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है अरेंज द फॉलोइंग principal gases of their atmosphere in descending order of their volumetric proportions: आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो सबसे ज्यादा आप जानते हो कि नाइट्रोजन होता है, तो 3 सबसे ज्यादा। तो ये कह रहा है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे बड़ा ज्यादा है जो पहले रखोगे, फिर उसके बाद ऑक्सीजन तो 3 4, उसके बाद आर्गन तो ये आपका 1, और उसके बाद 2, तो 3 4 1 2, तो 3 4 1 2, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कर रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर विल नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन। यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब संगठन, संगठन जो है एक समान किसका नहीं होगा। तो ऑयल इन वाटर, देखो ऑयल इन वाटर ये इसका आंसर, क्योंकि ऑयल जब डालते हो पानी में तो ये ऊपर ही ऑयल रह जाता है, क्योंकि इसका डेंसिटी कम होता है, तो ये ऑयल पूरा रूप से मिलता नहीं है। लेकिन सल्फर इन कार्बन डाइऑक्साइड, ये अब मान के चलो इसमें आपको डाउट हो सकता था, क्योंकि अल्कोहल तो पानी में मिलाते हो, दारू मिला करके पानी में पीते हैं, तो क्या दारू अलग और पानी अलग नहीं रहता है। शुगर को आप चीनी को मिलाते हो, तो ये दोनों में तो डाउट नहीं था, इसमें और इसमें हो सकता था, तो ये ध्यान रखो कि जो तेल ऊपर रह जाता है, तो इस वजह से ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 36 है व्हाट इज द मैक्सिमम, ये नंबर होगा, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी, या मैक्सिमम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
नंबर कर दो तो ज्यादा बेटर है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द एम सेल। तो देखो एम सेल आपके जो हैं के, एल, एम, एन, ये सब सेल होते हैं। तो फॉर्मूला होता है 2n²। तो इसके लिए 1 रखोगे, इसके लिए सॉरी इसके लिए 1 रखो, इसके लिए 2 रखो, इसके लिए 3 रखो। तो 2 × 3² तो 2 × 9 तो 18 मैक्सिमम हो सकता है। तो इसका बी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37, what is the number of moles of carbon in a sample containing 72.06 ग्राम ऑफ कार्बन। तो ये जो कह रहा है 72.06 ग्राम कार्बन वाले नमूने में कार्बन के मोलों की संख्या। तो देखो कार्बन का एक मोल जो होता है तो उसका 12 पॉइंट समथिंग, ये स्लाइटली आपका एक मोल का होता है। तो इतना डिवाइडेड बाई 12 करो, तो इतना डिवाइडेड बाई 12 करोगे तो कितना आपका आंसर आ जाएगा 6। तो ये 6 मोल होगा। बस यही आपको जानना था। तो बी इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 38, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज द हैवीएस्ट। इसमें हैवीएस्ट कौन सा है। तो देखो कभी ऑर्डर में भी पूछ सकता है। तो इसमें सबसे हल्का कौन सा है, तो हाइड्रोजन। ए आपका हाइड्रोजन हल्का है। हाइड्रोजन से भारी कौन है, हीलियम है। हीलियम से भारी आपका नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन से भारी आपका ऑक्सीजन। तो O2 ये हो जाएगा। तो सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। Next question number 39. You are located at 40° north latitude and 90° west longitude. You traveled due north 40°, then due east 60°. What is your new coordinates? तो देखो ये मान के चलो इस ढंग से कर लो। तो ये आपका नॉर्थ है, ये आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है, और ये आपका साउथ है। तो इस ढंग से आप इसको मान लो। तो पहले सपोज 40° पे है, और ये आपका तरह 90° वेस्ट में है। तो 90° आप इधर में हो, ठीक है, इधर में 90। तो यानी कि 40° इधर, ये यानी कि कह सकते हो कि यहाँ एक तरह से हो। अब कह रहा है कि यू ट्रेवल ड्यू नॉर्थ 40°। तो नॉर्थ में आप 40° ये करते हो। तो नॉर्थ में 40 और डिग्री ट्रेवल करते हो तो ये 80° हो जाएगा। तो देखो जो 30° है ये वाला तो हट गया। अब लेकिन कह रहा है तो इसमें से ये, अब कह रहा है नॉर्थ में ये, लेकिन ये साउथ वाला भी हट गया। तो हमारे पास दो विकल्प बचते हैं। देन ड्यू ईस्ट 60°। तो यहाँ 90° वेस्ट था, अब 60° ये चला, तो 60° चला तो 30° वेस्ट हो जाएगा। तो ये आपका सी हो गया। तो ये बहुत आसान था बस इसको देखना था। तो सी इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड बेंथोस। तो बेंथोस क्या होते हैं। माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स विच फ्लोट ऑन द ओशन वाटर, नो। ये एनिमल्स विच स्विम इन द वाटर, नो। प्लांट्स एंड एनिमल्स विच लिव ऑन द ओशन फ्लोर, ये इसका सी जो है आंसर, ये करेक्ट आपका हो जाएगा। नाउ जो नेक्स्ट 10 क्वेश्चन है वो उसमें से क्वांट मैथ्स के हमने लिए हैं। ये कह रहा है 41 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x² प्लस x-2। इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो देखो x² प्लस x-2 को सोल्व करेंगे तो इसको x² प्लस 2x लिख सकते हैं, और माइनस x और -2, क्योंकि इसको हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना। तो ये हमने लिख दिया, तो ये बराबर ही है। अब इसको x कॉमन लो तो x+2 हो जाएगा। यहाँ -1 कॉमन लो तो x+2 हो जाएगा, बराबर 0 इक्वल टू 0। x-1 इंटू x+2 इक्वल टू 0 है। x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -2। तो ये ये 1 और -2, यानी कि -2 और 1। ऑर्डर से इसमें कोई मतलब नहीं पड़ता है हमको। कोई भी इक्वेशन ये फर्स्ट में हो सकता है वैल्यू। तो ये आपका जो है करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 का रहा, इन ए सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट्स, 400 स्टूडेंट्स हैं इसमें। इन ए स्कूल 100 वेयर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस। 100 जो है एप्पल जूस लेते हैं, 150 जो है ऑरेंज जूस लेते हैं, और 75 जो है वो दोनों जूस लेते हैं। तो कितने ऐसे लोग हैं जो ना तो एप्पल का जूस लेते हैं ना ऑरेंज का। इसको ऐसे कर दो, देखो ये एप्पल मान लो, ये ऑरेंज मान लो। तो पहले जो दोनों वाले हैं, तो दोनों वाले को पहले आप देखो।
तो दोनों वाले को यदि पहले ये दोनों जो जिसमें कॉमन है, तो 75 आपने कॉमन ले लिया, तो 75 आपने ये कॉमन लिया, दोनों करते हैं, और 100 एप्पल जूस, तो इसका मतलब सिर्फ एप्पल जूस 25 ले रहे हैं। अब इसको इस वजह से कि किसी फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको उस एंगल से देखना है। और ऑरेंज जूस आपके 150, तो 75 तो इधर काउंट हो गया, तो 75 इधर। अब जोड़ो, तो ये 75 75 150 और 100 आपका 75, तो 175 कोई ना कोई जूस लेते हैं, या तो ऑरेंज एप्पल लें, ऑरेंज लें, या दोनों लें। टोटल कितने लोग हैं? 400। तो 400 में से 175 करो, तो 225 है जो कोई भी जूस नहीं लेते हैं, वो दारू पियेंगे या दूध पियेंगे, व्हाटसोएवर, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो बी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 का रहा है, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स ऑफ सीरीज 1 माइनस 1/2 प्लस 1/4 माइनस 1/8। ये देखो, इसमें एक्चुअल में क्या आ गया ना, यहाँ प्लस माइनस ये कर सकते हो, ये है देखो, एक टर्म एक्चुअल में देखा जाए तो माइनस है, फिर प्लस है, माइनस है, फिर प्लस है, ठीक है, फिर माइनस प्लस ऐसे ही। तो 8 टर्म्स, देखो एक चीज है, ये आप यदि देखोगे पहला टर्म और दूसरा टर्म को देखोगे, तो -1/2 गुना है। अब -1/2 गुने -1/2 करोगे तो क्या होगा? 1/4। फिर 1/4 में -1/2 करोगे तो क्या होगा? -1/8। इसका मतलब है कि यदि ये ज्योमेट्रिक सीरीज है जिसमें फर्स्ट टर्म जो है वो 1 है, और इसका जो आपका कॉमन ये आर जो है, यानी कि कॉमन फैक्टर जो क्या है, -1/2 है, और यन टर्म जो क्या है 8 है। तो एक तो फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला आपका क्या होगा? S8 आपको, यानी 8 टर्म का निकालना, सम ऑफ 8 टर्म्स, तो सम ऑफ 8 टर्म्स का क्या हो जाएगा? A। तो A यहाँ 1 है, तो A 1 में कोई दिक्कत नहीं है, 1 माइनस आर टू द पावर n, और डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, ये होता है। अब इसमें वैल्यू पुट कर दोगे सारे को, तो सॉल्यूशन करोगे, ठीक है, तो ये आपका 85/128 आ जाएगा, इसमें से सारे को वैल्यू को पुट करोगे तब। अब देखो एक चीज, तो इसका तो आंसर सी हो गया। अब मान के चलो इस वजह से कि हमको नहीं पता है, ये फॉर्मूले ही नहीं पता है अब एग्जाम हॉल में, तो अब ये क्या कर सकते हो, नेक्स्ट टर्म जो होगा 1/16 होगा, तो ये 1 2 3 4 5 टर्म हो गया। नेक्स्ट माइनस जो है 1/32 होगा, तो 6 टर्म हो गया। नेक्स्ट जो है प्लस जो होगा 1/64 होगा, और नेक्स्ट में -128। तो एक तो आप जानो कि 128 नीचे होगा, अब कौन सा होगा? तो आप एलसीएम सबका ले लो, 128 नीचे आ गया। अब ये है, तो 128, तो 128 माइनस करोगे तो इसका 64 होगा। फिर यहाँ प्लस करोगे तो प्लस ये 4 है, तो ये आपका 32 होगा। ये माइनस है, तो ये माइनस करोगे तो ये कितना होगा? 16 होगा। ये प्लस करोगे तो ये 8 होगा। फिर आप ये माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? आपका 4 हो जाएगा। फिर आपको प्लस करोगे तो 2 हो जाएगा, माइनस करोगे तो 1 हो जाएगा। आप इसको भी कर सकते हो, ये फॉर्मूला आता है तो ठीक है, आपको इससे बन जाएगा। ये 8 टर्म है तो हम इसको मैनुअली भी कर सकते हैं, तो जब इनको करोगे तो आपका 85 आ जाएगा। तो हमारे लिए एक ये आसान तरीका, ये मतलब ये फर्स्ट, इसमें मतलब ये 8 टर्म 6 टर्म 10 टर्म तक आप कर सकते हो, उससे ज्यादा हो जाएगा ये बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है, द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड बेसबॉल। तो बेसबॉल में टोटल कितने हैं? 8 हैं, लेकिन 8 में क्या है? बी 2 टाइम्स है, जो ये आपका ए 2 टाइम्स है, और यल 2 टाइम्स है। तो ऐसे यदि लेते तो फैक्टोरियल 8 होता, लेकिन फैक्टोरियल 8 को डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 इंटू डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2। तो 8 इसको क्या लिख सकते हैं? 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, और डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये 2 इंटू 2 इंटू 2 8 होता है, ये कट गया, तो इसको गुना कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो 5000 ये आपका 40 आ जाएगा। ओके, तो 5000 ये 40 आपका आ गया। तो डी आपका करेक्ट आंसर।
Question number 45. What is the number of diagonals which can be drawn by joining the angular points of a polygon of 100 sides? अब कोई polygon of 100 sides है तो उसको अब वो इमेजिन कर सकते हो। तो इसमें से कह रहा है कि कितने डायगोनल होंगे। देखो, जब दो साइड मिलता है, मान के चलो कि सपोज ये इसको लो, तो देखो ये आपका ये डायगोनल 2 होता है ना इसमें, तो 4 वाले में आपके कितने डायगोनल हो जा रहे हैं? तो ये तो अब 4 को हम एक तरह से क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू एक n-1 और डिवाइडेड बाई, सॉरी n-3 डिवाइडेड बाई 2 होता है। अब जैसे 4 वाले में देखो, तो 4 और n-3 करोगे तो 1 आएगा, 4 यानी कि 2 आ गया, 4 डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब 4 वाले में 2 है, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला हम इसमें भी लगा देंगे। तो 100 इंटू 100-3 तो 97 और डिवाइडेड बाई 2 तो ये 50, तो ये क्या हो गया 4850। तो ये फॉर्मूला आपको जानना होगा, और अदरवाइज नहीं है तो 4 वाले में देख करके देखो, 5 वाले में करके देखो और डिवाइड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है, x कैन कंप्लीट ए जॉब इन 12 डेज, x एंड y वर्क टुगेदर, they can complete the job in 6 2 and 3 यानी कि 6.67 days, by alone can complete the job। अब ये देखो, यदि आप देख रहे हो कि जो आपका ये 12 डेज में करता है, यानी एक डेज में 1 डे में 8.33 कर रहा है, और ये दोनों मिल करके 6.67 में, इसका मतलब है एक दिन में जो है 15% 15% काम हो रहा है। तो ये जब 8 पॉइंट समथिंग कर रहा है और इसको 12 डेज लग रहा है, तो इसमें से 15 में से ये करो तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा। इसका मतलब तो 12 डेज से तो ज्यादा लगेगा, तो ना तो 10 होगा ना 12 होगा, ये 15 डेज होगा। 15 क्यों? क्योंकि इसको 15 माइनस ये इतना करो तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा, उसको 100 से डिवाइड कर दो तो ये 15 आ जाएगा। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, इफ ए बॉडी कवर्स अ डिस्टेंस at the rate of x kilometer per hour and another equal distance at the rate of y kilometer per hour, the average speed। एक चीज ध्यान रखो कि दो इक्वल डिस्टेंस है, मान लिया ए डिस्टेंस और ए डिस्टेंस, तो 2a डिस्टेंस होगा, इसका मतलब 2 फैक्टर ऊपर आएगा। तो ये देखो, ये सी इसका ये फॉर्मूला ही होता है, आपको ध्यान रखो, लेकिन कॉमन सेंस भी आप लगाओगे तो ये बन जाएगा। तो सी इसका करेक्ट। हाँ, अब सब में होता तो आपको करके फॉर्मूला से देखना होगा। नेक्स्ट 48 नंबर, यम इज 60 ईयर्स ओल्ड, तो यम हमने लिख दिया 60। अब आर जो है 5 ईयर जूनियर टू यम है, तो आर 5 ईयर जूनियर इससे है तो 55 हो जाएगा। अब और 4 ईयर सीनियर टू वी है, तो इसका मतलब वी और वी को 4 ईयर्स कर दो तो 51 हो गया। अब यंगेस्ट ब्रदर ऑफ वी इज बी, विच इज ही इज 6 ईयर जूनियर टू वी, तो बी क्या हो गया 45 ईयर हो गया, 6 इसमें माइनस करो। तो यम और भी के बीच का डिफरेंस, यम और बी के बीच का डिफरेंस क्या है 15 ईयर्स है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, देयर आर 5 हॉबी क्लब्स इन अ कॉलेज, फोटोग्राफी, याचिंग, चेस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड गार्डनिंग। द गार्डनिंग ग्रुप मीट्स एवरी सेकेंड डे, तो 2 डेज। इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप मीट्स एवरी 3 डेज, ठीक है, 3rd डेज। चेस एवरी 4th डे, याचिंग एवरी 5 days, photography every 6 days। So how many times or do all the 5 group meet on the same day within 180 days? तो इसके एलसीएम निकाल दो। तो एलसीएम निकालोगे तो 1 3 2 5 और ये 3 से करो तो 1 1 2 5 1, इसका मतलब 10 60 हो गया। तो 60 डेज में 1 टाइम, तो इसका मतलब है 3 टाइम्स मिलेंगे, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन इसमें, इन अ क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट्स अ बॉय इज रैंक 20th, एक जो लड़का है उसका 20th रैंक है। व्हेन 2 बॉयज ज्वाइंड हिज रैंक वाज ड्रॉप्ड बाय 1, व्हाट इज हिज न्यू रैंक? तो देखो, पहले 45 लड़के थे तो इसका रैंक 20th था, तो जब 20th रैंक है तो इसका मतलब 19 ऊपर है, और ये 20th इसका है तो नीचे क्या है 25 है। अब दूसरा एक 2 लड़के आ गए तो इसका रैंक 21st हो गया, तो 21st हो गया तो इसके ऊपर 20 है,
अब नीचे ये 21 हो गया, तो नीचे 26 होना चाहिए, तो 26 प्लस 21 तभी तो 47 होगा। तो नीचे से क्या है, ये 26 नीचे है, तो 27 नीचे से हो जाएगा, तो नीचे से 27 हो जाएगा, तो ये सी हो गया। तो इस प्रकार हमने 50 क्वेश्चंस इसमें से किए। डेली बेसिस पे हम क्वेश्चंस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस जो आपके, मैंने बताया कि रेगुलर बेसिस पे पब्लिक में होगा, लेकिन जो पेड वाले हैं और या जो हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में ज्वाइन किए हुए हैं उनको फुल क्वेश्चंस मिलेगा। और आज हमने पेपर 1 का सिर्फ रखा है, पेपर 2 का कल से हम कुछ कुछ टॉपिक्स जो हैं, हमने जो बोला है कि 100 टॉपिक्स जो है पेपर 2 का कवर करेंगे, उसमें से कुछ टॉपिक्स जो हैं वो पेपर 2 वाले जो पेड वाले हैं वो लिखेंगे। ऑब्वियसली 100 क्वेश्चंस सारे टॉपिक्स वो पॉसिबल नहीं है, वो चेक करना, लेकिन लिमिटेड टॉपिक्स जो हैं वो देंगे चेक करने के लिए। और बाकी जो ओपन में टॉपिक है आप अपना लिखो, अपना किसी फ्रेंड से, सीनियर जूनियर से जो भी है चेक कराओ, और जो भी पेड प्रोग्राम में ज्वाइन करना चाहते हैं। और ये तो ऑलरेडी मैंने उसके वीडियो ऑलरेडी बना दिए थे, और उसको आप देखना, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, बस उसका लिंक जो है मैं इसमें दे दूंगा। ओके, थैंक यू, रेगुलर रहो।